आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की, जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने कई बयान दिए हैं। आज भी उनका एक ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने अपने एक बयान में यूनिवर्सिटी में कहा है कि अगर सरकार के खिलाफ बोला जाता है तो वो वजूद मिटा देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था और अंदाजा नहीं था कि मैं मानहानि जैसे मुकदमे में सबसे बड़ी सजा पाऊंगा और मुझे संसद से निकाल दिया जाएगा, मेरा घर छीन लिया जाएगा। यह बात राहुल गांधी ने अमेरिका में कही है। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया है मुसलमानों के ताल्लुक से, दलितों के ताल्लुक से, वो काफी चर्चे में है। काफी हंगामा मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel, that what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat, right? So you feel it most because it is directed at you most aggressively. But it is a phenomena that is taking place against everybody in India, right? And you cannot cut hatred with hatred. It's impossible, right? You know that. You can only cut hatred with love and affection. And I was surprised at how easy it was to erase hatred in India. I was shocked. I didn't imagine that भाई इधर से उधर चलने से इतना असर पड़ेगा. I didn't imagine it. Right? Indian people, as you yourself have said, they don't believe in this stuff. They don't believe in hating each other. They don't believe in killing each other. This is a small group of people who have got control of the system, who've got control of the media, and who are fully supported by, big money, right? But this is not the large mass of Indian people. I can guarantee you, I walked from Kanyakumari to Kashmir. I can guarantee you there are more people who believe in love and affection than hatred. Millions and millions more. So don't be pessimistic. Also, I'd like to point out another thing. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. We will do that. सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर दूसरे देशों में जाकर राहुल गांधी देश की बात क्यों करते हैं, देश पर सवाल क्यों खड़ा करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ग्लोबल विलेज है। अब ये देश और वो देश, इस किस्म की बातें मैं समझता हूं कि फजूल की हैं, क्योंकि जब हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी यहां प्रगति मैदान में बैठ करके अमेरिका में कार चला सकते हैं, तो आप सोचिए कि फिर अमेरिका में कोई बात की जाए या इंडिया में बात की जाए।
जापान में बात की जाए या कहीं और बात की जाए, बात तो हर जगह पहुंचती है। जो बात है वो है। ग्लोबल विलेज में ये बार बार सवाल उठा देना कि अमेरिका जाकर के वो बयान क्यों दे रहे हैं, सवाल ये नहीं है। आज देखिए, महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी हैं, लेकिन यह मामला अंतरराष्ट्रीय मामला बन गया, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मामला बन गया। क्या कोई इससे इनकार करेगा? अब ये महिला पहलवान जंतर मंतर पर अपनी बात कहें या अमेरिका में जाकर कहें, लेकिन संज्ञान तो इसका लिया गया, इसका नोटिस तो लिया गया और दुनिया ने लिया। तो इसलिए यह बात कहना कि उन्होंने हिंदुस्तान में न कह के अमेरिका में ही बात कही, अब यह बात बेमानी हो जाती है। सवाल यह है कि जो बात राहुल गांधी ने कही है उसमें सदाकत है कि नहीं है। भाजपा इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? नए संसद का उद्घाटन हुआ तो आखिर एक ही मजहब के नुमाइंदगान को, एक ही मजहब के धर्म गुरुओं को क्यों ले जाया गया? यह सवाल क्या नहीं उठाया जाना चाहिए? आखिर प्रधानमंत्री ही ने उसका उद्घाटन क्यों किया? स्पीकर ने क्यों नहीं किया? राष्ट्रपति ने क्यों नहीं किया? इस पर क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? इस पर सवाल उठना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम के लीडर हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर क्या बयान दिया है उस पर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले हम यह देखना चाहते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्या बयान दिया है, आखिर वो क्यों शामिल नहीं हुए, क्या वजह थी और क्या उनको एतराज था। हालांकि वो अपोजिशन के बराबर नहीं खड़े उस एतबार से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में शिरकत नहीं की। इनका अलग तर्क है और मैं समझता हूं कि यह तर्क बड़ा वाजिब है। आइए पहले सुन लेते हैं कि नए पार्लियामेंट के सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी की क्या राय है, उन्होंने क्या बयान दिया है। देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते, वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज़ है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था, वो एक को ही लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेके जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, जो सरना कोर्ट का डिमांड करते हैं, सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। पर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की। तो कहने का मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात उठाई है, बात राहुल गांधी की हो रही है, मुसलमानों की हो रही है, दलितों की हो रही है, तो इसीलिए हो रही है क्योंकि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो सही नहीं है। मुल्क को जिस राह पर ले जाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और अगर राहुल गांधी उस पर बोलते हैं, अगर सवाल खड़े करते हैं, तो फिर उन पर हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यकीनन यह कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और कर्नाटक में हमने मोहब्बत की दुकान खोल दी। भारत जोड़ो यात्रा हमने की, हमने जोड़ने का काम किया, लेकिन भाजपा तोड़ने का काम कर रही है। यह बात राहुल गांधी ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि वहां पे मुसलमान हों या और जो माइनॉरिटीज हैं वो डरी हुई हैं। तो क्या इसमें कोई गलत बात है? क्या ऐसा नहीं है? आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा कि इतनी बड़ी मोदी जी की कैबिना, लेकिन एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं, जबकि हिंदुस्तान में तकरीबन 17 से 17.5% मुसलमान हैं। क्या 17.5% मुसलमानों की नुमाइंदगी मोदी सरकार में नहीं होनी चाहिए थी? क्या अगर यह सवाल कोई उठाएगा तो इसको गलत करार दिया जाएगा? कौन इसको गलत करार देगा? और क्यों आप कहने का मौका दे रहे हैं? सवाल यह है कि नासिर और जुनैद का कत्ल होता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। सवाल यह है कि बिल्किस बानो के जो मुजरिमीन हैं उनको आपकी सरकार छोड़ देती है,
उन गुनहगारों को छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। सवाल यह कि ऐसा क्यों किया जाता है? और फिर अगर कोई सवाल खड़ा कर देगा तो आप जो है ये कहेंगे कि अमेरिका में ये बात क्यों कहेगी? कर्नाटक में आपने हिंदुत्व के सारे मोहरे इस्तेमाल कर लिए। आपने हिजाब का मामला उठाया, आपने हलाल का मामला उठाया, आपने मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, आप यकसा सिविल कोड लाने की बात आपने की, और न जाने क्या क्या आपने किया। आपने प्रधानमंत्री होकर यह कहा कि जय बजरंग बली बोलकर आप वोट कीजिए। यह क्या है? आपके गृह मंत्री ने कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहां दंगे हो जाएंगे। यह क्यों कहा होम मिनिस्टर ने? तो इसका क्या जवाब है? तो अगर राहुल गांधी ने ऐसी बात कह दी तो कौन सा तूफान खड़ा हो गया, इसका आप जवाब दीजिए। लेकिन यह कि अमेरिका में क्यों बयान दे दिया, वो बाहर जाकर के क्यों बयान दे रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह ग्लोबल विलेज है। आज की दुनिया जो है वो पहली जैसी नहीं थी कि अगर अमेरिका में बयान दिया जाएगा तो हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते वो बात कई साल लग जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आज हिंदुस्तान में बयान दिया जाए या अमेरिका में बयान दिया जाए, मैं समझता हूं कि उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सवाल बड़े हैं, मुद्दों पर बात की जानी चाहिए, मुद्दों का जवाब दिया जाना चाहिए। अब रहे सवाल असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पे तो वो सवाल उठाते ही है, लेकिन कांग्रेस पर भी हमला करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल किया, कहा कि बड़ा अच्छा बयान है, लेकिन वो जवाब दें अशोक गहलोत का कि नासिर और जुनैद के मामले में 15 दिन क्यों लगा दिए, उनको इंसाफ क्यों नहीं दिलाया गया? नासिर और जुनैद का कत्ल हो तो 15-15 लाख और दूसरा को हो तो 50 लाख और 1 करोड़ क्यों दिया जाता है? यह फर्क क्यों है? और भी कई सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए हैं, उनको भी हम सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या। ये देखिए। उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में ख़त्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूँगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूँ। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। ये कब तक ज़बानी खर्च करते रहेंगे आप? तो कैश बेस्ड सेंसस की बात की है सर उन्होंने, और बीजेपी इसके खिलाफ है ये बता रहे सर। अरे आप कर दीजिए, राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने? राजस्थान में करिए, आप छत्तीसगढ़ में करवा दीजिए, आपकी सरकार है वहाँ पर करवा दीजिए आप कास्ट बेस्ड सेंसस। कौन रोक रहा था? इतने साल से क्यों नहीं करवाया आप? आपकी सरकार थी यूपीए में, आपने शुरू किया था, उस वक्त लेके आना था जनता के सामने आप।
अरे भाई जब आप सरकार में थे आपने नहीं किया, आपने सरकार में थे गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया, आप सरकार में थे आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया, आप सरकार में आपने सोशो कास्ट सेंसस आपने शुरू किया था, लेके आना था उस वक्त, आप अभी भी करवा दीजिए ना। हम भी चाह रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस हो, हम भी मानते हैं कि रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को ब्रीच होना चाहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी के पास 300 एमपी है, वो फौरन बिल लेकर आए लोकसभा में और 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करें, हम भी सपोर्ट करेंगे उसको। तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से सवाल किए। सवाल वाजिब है, लेकिन कांग्रेस, मैं समझता हूं कि इन बातों को समझ चुकी है। कांग्रेस शायद अब नए दौर में दाखिल हो रही है। हालांकि कमलनाथ के सिलसिले में जो बात कही गई है वो भी काबिल गौर है, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। तो अब बहरहाल इस किस्म के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लड़ाई जो है वो बहुत बड़ी है। अगर अभी सरकार बनाने की बात आएगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के साथ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, वो कांग्रेस के साथ ही खड़े होंगे। शिकायत अपनी जगह, सवालात अपनी जगह, और जो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, वो अपनी जगह ये है। मैं खुद बार बार कहता हूं कि पिछले 75 साल से देश में कौन सा सेकुलरिज्म चल रहा है। मौलाना आजाद को रामपुर में मुस्लिम इलाके में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ा। आखिर मौलाना आजाद को कांग्रेस ने हिंदू क्षेत्र से क्यों नहीं जिताया? अगर वाकई देश बहुत बड़ा सेकुलर था तो फिर यह बताइए आप कि यह क्यों तय कर दिया गया कि मुसलमान जो होगा वो मुस्लिम इलाके से ही चुनाव लड़ेगा? क्यों लड़ेगा वहां से? क्यों वहां की नुमाइंदगी करेगा? सेकुलर मुल्क में यह बंटवारा क्यों किया गया कि यादव जो है वो यादव की सीट से लड़ेगा, जो मुसलमान है वो मुसलमान की सीट से लड़ेगा? और अब तो मुसलमानों में भी कि जो अंसारी बिरादरी है अगर किसी क्षेत्र में, तो वहां अंसारी बिरादरी जो है वो चुनाव, ये ऐसा क्यों? ये कौन सा सेकुलरिज्म? मैं समझता हूं इन तमाम चीजों पर गौर करने की जरूरत है। और भाजपा को बहरहाल सवाल भले ही कांग्रेस से हो, लेकिन इस वक्त सवाल भाजपा से है, क्योंकि भाजपा की केंद्र में सरकार, और भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया।